Hello friends, I'm back with another video, and in this video I will be continuing chapter number 1, fundamentals. And fundamentals, in last video I have shared about the topic loan from firm and loan to firm by partner. So in this video we will be understanding about the P&L appropriation account, the format of P&L appropriation account, which is very important. So let's just understand the format of P&L appropriation account. See, P&L appropriation account, as I told you, it's a T-shape format. It's a T-shape account, normal T-shape account. And this T-shape account format, you very well know that there are marks of format in exam. So you have to be very particular about making the format in exam. P&L appropriation account for year ended. You can write it all together in one line, or you can write it like this also. So particulars rupees, particulars rupees. Let's write it properly, otherwise you will get confused. So particulars rupees, particulars rupees. So you will write down P&L appropriation account for year ended. You have to you have to write the year ended, कौन सा year ended है. अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि P&L appropriation account जो है, it is an extension of P&L account. तो मान लीजिए मेरा P&L account है, P&L account की डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है. यहाँ मैंने सारे एक्सपेंसेस, या फिर मैं कह सकती हूँ सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया. जितने भी मेरे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, आई हैव रिकॉर्डेड ऑल ऑफ देम. एंड उन सारे चार्जेस को मैंने कहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया? मैंने इनकम्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. और जब मैंने इनकम्स में से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया नेट प्रॉफिट, या फिर इट कुड बी नेट लॉस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में विल गेट नेट प्रॉफिट विच इज़ ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा. नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने के बाद दिस नेट प्रॉफिट विल कम फ्रॉम P&L अकाउंट. सो यू कैन राइट NP मीन्स नेट प्रॉफिट. सो दिस नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट. इस प्रॉफिट में से जो जो एप्रोप्रिएशंस हमें पार्टनर्स को देनी होती है वो हम दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल दैट देयर आर टू पार्टनर्स A एंड B. दो पार्टनर है मेरे, वन इज A एंड अनदर वन इज B. एंड इन दोनों को क्या क्या एप्रोप्रिएशंस हम देंगे, लेट्स सी. We will give first of all interest on capital. I told you in the last video, you can go through the video. A's capital account, B's capital account, whatever amount of interest on capital we are giving to the partners, we will show that. Apart from this, we give salary to the partners or any sort of remuneration in form of commission और इन फॉर्म ऑफ सैलरी. जैसे भी आप उनको रेम्यूनरेट करना चाहते हैं आप उन्हें रेम्यूनरेशन दे सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट डू वी पे? वी यूजुअली पे टू द पार्टनर्स. वी पे एनी पार्टनर्स कमीशन. किसी भी पार्टनर की कमीशन हो सकती है, as I told you. So you can give commission to that partner. And general reserve. General reserve is also created out of profit. So we'll go through the different cases of general reserve. So general reserve is also an appropriation out of profit. So salary, remuneration, interest and capital, all these remuneration and appropriations which are there, which are paid to the partners out of the profit, will be debited. As I told you in the last video, you can go through the video and you can watch again if you have any doubt that any any appropriation out of profit like interest on capital, salary, commission, general reserve, they all are kind of an expenses for the firm. So we follow the format, we follow the rule of nominal account only, which states that, क्या state करते हैं nominal account का rule? Debit all expenses and losses and we will credit all incomes and gains. तो the same concept we are following. हम सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ फॉलो कर रहे हैं. हमने प्रॉफिट में से जितनी भी एप्रोप्रिएशंस, या कह लो हमारी पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी एक्सपेंसेस है, उन सबको हमने क्या कर दिया, उन सारे एक्सपेंसेस को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया यहाँ पे. और फर्म की जितनी भी इनकम्स है, अब पार्टनरशिप फर्म के लिए एक इनकम क्या हो सकती है? पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम हो सकती है कि उन्होंने पार्टनर से लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा जो लेना है, ए के कैपिटल अकाउंट से आएगा, बी के कैपिटल अकाउंट से आएगा,
और जो भी पैसा आएगा वो फर्म के पास आ जाएगा फाइनली। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, P&L एप्रोप्रिएशन में यही चीज़ें लेने देने की होती हैं। तो ये सब देने लेने के बाद फाइनली क्या होगा, हम अपने अकाउंट को क्लोज करेंगे। जैसे हम एक नॉर्मल अपना अकाउंट क्लोज करते हैं, सिमिलर तरीके से वी विल बी क्लोजिंग आवर अकाउंट। एंड जैसे ही हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करने पे या तो मेरा प्रॉफिट बैलेंस इधर बचेगा जो कि प्रॉफिट होगा, या मेरा बैलेंस इधर बचेगा विच इज़ गोइंग टू बी लॉस। ठीक है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, बोथ ईदर ऑफ देम जो भी है इट विल बी ट्रांसफर टू से ट्रांसफ़र कर देंगे ए के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में। जो भी अमाउंट आएगी इधर आएगी तो इधर कर देंगे, उधर बचेगी तो उधर कर देंगे। डेबिट क्रेडिट कहीं भी बचेगा तो वो अमाउंट हम ए बी को दे देंगे। और हम ये अमाउंट किस रेशो में ट्रांसफ़र करते हैं, दिस इज़ ट्रांसफर्ड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में हम इनके प्रॉफिट को इनके अमंग्स जो है वो शेयर कर देंगे। तो आई होप द फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ गो थ्रू दिस फॉर्मेट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने क्या बताया मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देती हूँ कि नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल है हमारे P&L एप्रोप्रिएशन के ऊपर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, और जितने भी फर्म की एप्रोप्रिएशन, पहले नेट प्रॉफिट हमने P&L अकाउंट से उठाया और उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उस प्रॉफिट में से जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हमें देनी है वो सारी एप्रोप्रिएशंस हम पे कर देंगे और वो डेबिट में आ जाएंगी। वो सारी एप्रोप्रिएशंस पार्टनर्स को देने के बाद जितना भी पार्टनर से हमें पैसा रिसीव करना है इन फॉर्म ऑफ फर्म्स गेन, सो दैट विल बी क्रेडिटेड लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इट विल बी क्रेडिटेड। एंड वंस वी गेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वी विल देन इक्वेट बोथ द साइड्स। जिस साइड पे बैलेंस ज़्यादा बचेगा, जहाँ पे कम होगा, डेबिट में कम होगा तो इट विल बी प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर क्रेडिट में होगा तो इट विल बी लॉस विच विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो दिस वॉज अबाउट द P&L appropriation account, a very one short video to understand P&L appropriation account. Rest will be continuing in the next video. So till then, do like, subscribe and share. That will be a great help. Thank you so much. Stay tuned with me. I'll be providing you more and more better information. Thank you so much.